مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ کبھی پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا تھا کہ پیار کے دشمن ذرا تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دیں، ایک تیرا در ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دیں، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں۔ کبھی ہم نے ڈاکٹر بشیر بدر بن کر اس طرح سے شعر کہے ہیں کہ میں سو جاؤں تو ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے۔ ہم نے اس طرح سے بھی غزل میں اپنے محبوب سے بات چیت کی ہے، ہم نے یوں بھی بات کہی ہے کہ گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، اور ہم نے تو محبت میں تمہیں کھویا ہے، اور ہم نے تو محبت میں تمہیں کھویا ہے۔ ہم نے اس طرح کے شعر بھی کہے ہیں، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ حضرات گرامی، یہ ایک شاعر کا کرب ہے، ایک عاشق کا کرب ہے، لیکن عاشق ان تمام احساسات کو جب پیش کرتا ہے تو محبوب کی طرف سے کس طرح سے جواب مل سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ریحانہ روحی نے کہا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے۔ حضرات گرامی، نسائی لہجے کی ترجمانی میں آج کی خاتون اس طرح سے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسائی لہجے کی ترجمانی میں بہت سی شاعرات نے زندگی کو آئینہ دکھایا ہے، لیکن ایک شاعرہ جسے اس وقت میں مائک پر بلانے جا رہا ہوں، اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی غزلوں اور نظموں کے حوالے سے ہندوستان، پاکستان اور خلیجی ممالک کے مشاعروں میں اپنی ایک مخصوص شناخت بنائی۔ مشاعروں میں لوگوں کی دعائیں حاصل ہوئیں، سامعین کی دعاؤں کے ساتھ ہندوستان کے اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کے مشاعروں میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ امروہہ کی یہ نمائندہ شاعرہ محترمہ نکہت امروہوی، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بارہا آپ نے انہیں سنا ہے۔ آئیے جگن پور کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں نکہت امروہوی سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ زوردار استقبال کریں نکہت امروہوی۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ میرے بڑے بھائی ریحان بھائی اور مسرور بھائی کا ہو، میری آپ کے دیار میں حاضری۔ اس سے پہلے بھی آپ کے دیار میں کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے، کیا پڑھا تھا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اکثر چمن بھائی سامنے بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہاں کہ واقعی میں سر پہ بڑے بھائی کا ہاتھ ہے، مگر سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر کوئی بات نہیں، آپ سب لوگ ہیں اور چمن بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، لیکن دائز بہت معتبر ہے۔ نکہت یہ مت بتا دینا کہ کتنی بار آ چکی ہو جگن پور، لوگ اس سے عمر کا اندازہ لگانے لگتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہوں گی ندیم بھائی، مجھے بتانے دیجیے کہ میں کتنی بار آئی ہوں، بہت آپ سبھی کی دعائیں مجھے ملتی رہی ہیں۔ یہ غزل کے کچھ شعر پڑھنا چاہتی ہوں، بلکہ کیا ایسے کہوں کہ روداد غزل پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے دیار میں، اور آخری صف تک چاہے مجھے ایک ہی غزل پڑھنی پڑے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ میں پڑھتی ہوں، سنیے جی پڑھیے۔ میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، کیا کہنا ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں، میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، ایک پل میں
लड़कियों की मगई हर तरफ भीड़ है, लड़कियों की मगई मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शायरी की हिफाजत की। जी मैं बिल्कुल फिर से पढ़िए। और मुझ जैसी अदना शायरा को आपने अपनी दुआओं से नवाजा। जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे से बच्चे शायरी सुन रहे हैं और ये पहली बार देखने को मिल रहा है मुझे जगनपुर में। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है, लड़कियों की मगई हर तरफ भीड़ है, लड़कियों की मगई मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। ये शेर बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि माँ के हवाले से शेर पढ़ती है, मैं बाप के हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ बतौर खास। जी जी घर घर की कहानी आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई निकत अमरोही, बहुत बहुत मुबारक। ये शेर उन तमाम महरूम बेटियों की तरफ से है जो ये इंतजार कर रही हैं कि कोई उनके हाथों के लिए मेहंदी लेकर आएगा और वो महरूमी, वो उनकी जो महरूमी है उस महरूमी को आवाज दी है निकत अमरोही ने। पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियों की गूंज में निकत अमरोही का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें ये इजाजत दे कि वो गजल का अगला शेर सुनाए। मैं पढ़ती हूँ, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो एक ही गजल पढ़ूंगी, मगर साथ सबका मांगती हूँ मैं, क्योंकि मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए आपने। अरे क्या कहना, शायरी सुन रहे हैं, शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। मैं शेर दोबारा हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। वाह वाह भाई, क्या कहना, क्या कहना। गम की आगोश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और चमन भाई, जब कोई मुफलिस बाप की बेटी होती है तो यकीन सी बात है कि उसे ऊंचे ऊंचे सपने, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। ये शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। वाह 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 भाई,
भाई क्या कहना, क्या कहना। नवाजिश करम मेहरबानी, आप सभी की दुआएं मिली। वाह वाह वाह। गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर खास। ये गजल आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। शेर पढ़ती हूँ आप सभी के लिए, सुनिएगा। कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, फैसला तुझको देख करना है। मेरी तरफ दिल की गहराई से, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहेली नहीं, वाह वाह वाह। कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। क्या कहना, क्या कहना। अपने सदर मोहतरम तैयब साहब और अपने नाज़िम मुशायर नदीम फरूक साहब, खुर्शीद हदद साहब, नीसम भाई और अतुल अजनबी साहब सभी तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर नदीम मसरूर भाई, नदीम मेरा बहुत अच्छा भाई छोटा, सभी की दुआएं मुझे नसीब हुई। मैं ये मक्ते का शेर पढ़ती हूँ और ये भी जितने भी यहाँ वालिद मोहतरम हैं उन सब की नजर करती हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा। जी रकम भी है और आप भी हैं, आप जो करवाना चाह रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा। सुनिए पढ़ती हूँ कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। वाह। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, क्या अच्छा मिसरा है। वाह। इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। वाह वाह वाह। अरे अरे बात सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप। निकत अमरोहवी से कम एक गजल और सुनी जानी चाहिए। क्यों साहब, सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी जानी चाहिए? सुनी जानी चाहिए। और अब गजल सुनने वाले और गजल से मोहब्बत करने वाले लोग मेरी आंखों के सामने हैं, तो मैं चाहता हूं कि निकत से ये गुजारिश की जाए कि खूबसूरत सी गजल और पढ़ दें, और इसी तरह से जैसे वो मूड में इस वक्त है, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मूड में गजल और सुना दें। निकत अमरोहवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ कुछ। अब यहाँ से अलग पढ़ना चाहती हूँ थोड़ा सा, एक मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ, नई गजल है, सुनिएगा। राह सुनसान है, दिल परेशान है। पहले तो आप उठ के बैठिए। हाँ भैया, ये क्या हो गया? बैठ के सुनिए जी। राह सुनसान है, दिल परेशान है, ऐसी तन्हाई में किसके घर जाऊंगी। राह सुनसान है, दिल परेशान है, ऐसी तन्हाई में किसके घर जाऊंगी। राह सुनसान है, दिल परेशान है, ऐसी तन्हाई में किसके घर जाऊंगी। दिल धड़कने लगा, सांस रुकने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस रुकने लगी। तुम सहारा न दोगे तो मर जाऊंगी। राह सुनसान है, दिल परेशान है, तुम सहारा न दोगे तो मर जाऊंगी। और
शेर भी पढ़ती हूँ बतौर खास, सुनिएगा इरशाद। कि तुम मिले हो मुझे तो खुदा की कसम मैं मोहब्बत की कीमत समझने लगी। तुम मिले हो मुझे तो खुदा की कसम मैं मोहब्बत की कीमत समझने लगी। मैं बना गई तुम्हें मुस्तकिल आईना, मैं बना गई तुम्हें मुस्तकिल आईना। अब मुकद्दर की सूरत समझ जाऊंगी। मैं बना गई तुम्हें मुस्तकिल आईना। अब मुकद्दर की सूरत समझ जाऊंगी। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा, गजल का शेर है। मैं वो अल्लड़ नदी हूँ जिधर चल पड़ी, ये किनारे मुझे रोक सकते नहीं। मैं वो अल्लड़ नदी हूँ जिधर चल पड़ी, ये किनारे मुझे रोक सकते नहीं। तोड़ दूंगी मैं सारे जहां का भरम, तोड़ दूंगी मैं सारे जहां का भरम। और समंदर में एक दिन उतर जाऊंगी। तोड़ दूंगी मैं सारे जहां का भरम, और समंदर में एक दिन उतर जाऊंगी। माइक आवाज बहुत खींच रहा है। गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद मक्ता, फिर आप सभी की ज़हमत तमाम समाप्त कीजिएगा। ये जमाना है रुसवा न कर दे कहीं, पीछा करती है नजरें तुम्हें क्या पता। ये जमाना है रुसवा न कर दे कहीं, पीछा करती है नजरें तुम्हें क्या पता। रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी, रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी। अब न रोको मुझे, अब मैं घर जाऊंगी। रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी, रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी। अब न रोको मुझे, अब मैं घर जाऊंगी। निकात अमरोही, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। हजरत गिरामी, ये जो शेर पढ़ा गया अभी, ये शेर सिर्फ हिंदुस्तानी कल्चर में, सिर्फ हमारे बड़े सगीर के कल्चर में पढ़ा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अगर मैं कहूं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप और अमेरिका के जो मुल्क हैं, उन मुल्कों में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। वहां मोहब्बत का मतलब गाली है, यहाँ मोहब्बत जिस सलीके के साथ की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि निकात अमरोही से ये शेर एक बार फिर सुना जाए, और ये सुना जाए कि हिंदुस्तान में अगर कोई लड़की संजीदगी के साथ मोहब्बत में अपने जज्बात की तर्जुमानी करती है तो किस तरह से अपनी बात कह पाती है, इसका नमूना देखते हैं। निकात अमरोही, ये शेर एक बार फिर सुना। अदील भाई का हुक्म है, मैं शेर दोबारा हाजिर करती हूँ। आप सभी की एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बेपनाह दुआओं से नवाजा मुझे। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये जमाना है रुसवा न कहे दे कहीं, पीछा करती है नजरें तुम्हें क्या पता। ये जमाना है रुसवा न कहे दे कहीं, पीछा करती है नजरें तुम्हें क्या पता। रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी, रोशनी गुम हुई शाम ढलने लगी। अब न रोको मुझे, अब मैं घर जाऊंगी। रोशनी गुम हुई क्या कहना बाबा, शाम ढलने लगी। अब न रोको मुझे, अब मैं घर जाऊंगी। और मख्ते का शेर बतौर इरशाद इरशाद।
चमन भाई समाज कीजिएगा, पढ़ती हूँ कि जिस तरफ ले चलोगे चलूंगी उधर, याद माजी की अपनी भुला दूं मगर। जिस तरफ ले चलोगे चलूंगी उधर, याद माजी की अपनी भुला दूं मगर। मैं हूँ नकहत तुम्हारी, मैं हूँ नकहत तुम्हारी, तुम्हारी कसम। मैं हूँ नकहत तुम्हारी, तुम्हारी कसम। सख्त राहों से हंस कर गुजर जाऊंगी। मैं हूँ नकहत तुम्हारी, तुम्हारी कसम। सख्त राहों से हंस कर गुजर जाऊंगी। वाह वाह।